Good morning, students. Let's start our computer class from chapter 1 MS Access. In this lesson, we will learn about database and DBMS, structure of database, advantages of DBMS, MS Access 2010, starting MS Access 2010, creating database using MS Access 2010, creating a new table in an existing database, parts of MS Access database interface window, components of MS Access database, exiting MS Access. ओके ये सब आज हम सीखेंगे कैसा होता है MS Access में. Now first introduction. Data and information are important components of a computer system. Microsoft Access is a database program that is used for storing all kinds of information in the form of tables, queries, forms, reports, etc. We input data which is processed by the CPU and we get a meaningful output. आपने पढ़ा ही होगा input, process and output cycle. Okay. Now data is normally stored in the database. Database and DBMS. डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स. ये क्या होता है? एक सीक्वेंस अरेंज रहता है, सीक्वेंस में अरेंज रहता है. ठीक है. इट हेल्प्स टू मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम जो टेलीफोन डायरी लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं ना कि ये वाला कहाँ पे आएगा, फिर हम डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं. सेम डिक्शनरी में भी अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है वो अरेंज होता है. एंड एड्रेस बुक ऑल्सो. Okay, MS Access is a database program. Access finds its application in various areas like schools, offices and even government records. Okay. एक नया टर्म है द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. ये किसने इन्वेंट किया था? EF कॉड ने. कब? 1970 में. अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट वर्किंग फॉर IBM. Okay. Now database management system, short form है DBMS. DBMS is a software that provides all the necessary tools to a user to help him organize data into a database. It provides facilities to add, modify or delete data from a database, query the database about the data stored in it and produce reports based on its contents. ठीक है. इसके एग्जांपल हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एंड मैनी मोर. ठीक है. जैसे हम डेटाबेस बनाते हैं उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें ऐड भी करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो क्या यूज़ करते हैं हम? DBMS. ओके. नाउ नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज मेड अप ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड टेबल्स. ठीक है. स्ट्रक्चर डेटाबेस का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है? फील्ड से, रिकॉर्ड्स एंड टेबल्स से. फील्ड होता क्या है? फील्ड अ कॉलम within a table that contains only single piece of information is known as a field. For example, in a data table given below, name, date of birth and city are the different fields name. ठीक है. मीन्स जो हेडिंग है वो इसका क्या है? फील्ड है. नाउ रिकॉर्ड. द कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. ऑल द नेम्स इन द कॉलम आर अ रिकॉर्ड. ठीक है. नेम जो फील्ड है उसके अंदर हम डेटा फिल करेंगे वो क्या है? कहलाएगा रिकॉर्ड. नाउ टेबल. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. जो रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है वो क्या कहलाता है? टेबल. रोज आर नोन एज रिकॉर्ड एंड कॉलम्स एज फील्ड. ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स. ओके. नाउ एडवांटेजेस ऑफ DBMS. First, reduces data redundancy, enforces standards, data sharing, data security, multiple user interface, backup and recovery. Reduces data redundancy means duplication of data क्या कर देता है? ये reduce कर देता है. ठीक है. इसमें डुप्लीकेट जो भी हम रहेगा वो क्या हो जाएगा? इसमें रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ लाइब्रेरी द नेम ऑफ अ बुक में ऑकर अंडर द ऑथर्स नेम एंड इट्स ISBN नंबर. However, with the help of DBMS, the redundant data can be removed. Second, enforces standards. In DBMS, certain standards can be applied in the data representation. Okay. Now, data sharing. The data stored in DBMS can be shared among multiple users or application programs. And data security. Since the data is stored centrally, enforcing security constraints is much easier. The DBMS ensures that the only means of access to the database is through an authorized channel. Next, multiple user interface. In order to meet the needs of various users having different technical knowledge, DBMS provides different type of interface such as query languages, application programs interface and graphical user interface. That includes forms, style and
driven interfaces. Next, backup and recovery. The DBMS provides backup and recovery subsystem that is responsible for recovery from the hardware and software failures. Okay, ये सब क्या इसके एडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट MS Access 2010, ये इसका लोगो कैसा दिखता है ये सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद. ओके, ये क्या है, ये मेनली पार्ट है किसका, MS ऑफिस का. ठीक है, और इसके वर्जन्स हैं क्या है 1.0, 2.0, 7.0, 97, 2000, 2002, 2007 एंड 2010 ये लेटेस्ट. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010 इज़ अ स्यूडो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट combines the relational Microsoft Jet database engine with the graphical user interface and software development tools. It is a member of Microsoft Office suite of applications included in the professional and higher editions. It provides the facility to create relationship among these tables using common fields. It is used by both programmers and non-programmers to create their own database. Okay. Now how to start MS Access. सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010. जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, स्टार्ट बटन में जाने के बाद आप वो चूज़ करेंगे, ओपन हो जाएगा आपको. ठीक है. नेक्स्ट, क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग MS एक्सेस 2010. डेटाबेस क्या करना है आपको, क्रिएट करना है. ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 प्रोग्राम, देन क्लिक न्यू डेटाबेस, ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन now Microsoft Office 2010. Okay, is it clear? तो MS एक्सेस ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है. तो सबसे पहले वहाँ पे कहाँ जाएंगे हम, न्यू ब्लैंक डेटाबेस से. ठीक है, वहाँ से जाके यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन. ठीक है, फिर क्रिएट कर देंगे. नाउ नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ टेबल इन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस. ठीक है, आप जिसमें ओपन किए हो जो MS एक्सेस, उसमें क्या करना है, नया टेबल क्रिएट करना है. ठीक है, तो इसके लिए प्रोसीजर है, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड देन क्लिक ऑन ओपन. इन द ओपन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द डेटाबेस दैट यू वांट टू ओपन एंड देन क्लिक ओपन. ऑन द क्रिएट टैब इन द टेबल ग्रुप, click on the table. Select table design option from the tables group on the create tab shown. You will see the table designation windows appear. Enter fields name and its data type. ठीक है, और आपको सेव करने का प्रोसीजर पता है, Ctrl+S या फिर फाइल में जाके क्या करते हैं, सेव एस, ऑफिस बटन में जाके सेव एस का ऑप्शन चूज करते हैं. ओके, देन ओके बटन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस इंटरफेस विंडो. ठीक है, इसके पार्ट्स हैं जैसे हम जनरली MS ऑफिस में देखते हैं, MS एक्सेल में देखते हैं, सेम इसमें भी विंडोज़ हैं. टाइटल बार, एक्सेस रिबन, द स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, नेविगेशन पैन एंड एक्सेस वर्क एरिया. ठीक है, टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल होता है पेज का. ठीक है, एक्सेस रिबन, under the title bar, Microsoft Access displays an object named ribbon. It consists of a row of tabs such as file, home, create, external data and database tool. Okay. Status bar क्या शो करता है, information. ठीक है, and scroll bar, it is window components in MS Access that enables a user to navigate through different portions of an object in a work area. Okay. नाउ नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस. ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हैं टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोस एंड मॉड्यूल्स. इसमें क्या है, टेबल्स, दे आर स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, फील्ड्स. ओके. क्वेरीज क्या होता है, they are basically questions based on the data of the database. They allow you to extract data or information about the fields, records and summaries of the टेबल और डेटाबेस. क्वेरीज में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या कर सकते हैं, पर्सन या जो भी हम चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी उस टेबल में है वो क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं. फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स आर द इनपुट स्क्रीन्स डिजाइन टू सिंप्लीफाई द डेट एंट्री प्रोसेस. नेक्स्ट है रिपोर्ट्स. दिस प्रेजेंट डेटा फॉर्म अ टेबल और क्वेरी इन द प्रिंटेड फॉर्म. रिपोर्ट क्या होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है. नाउ पेजेस, पेजेस आर यूज्ड टू ऐड, व्यू एंड एडिट डेटा ऑफ द टेबल्स. नाउ मैक्रोस,
They help you to perform routine tasks by automating them into a single command. Now modules. Modules are the collection of programs written to access the database. Okay, ये जो आपको दिख रहा है इसमें पूरे modules, इसमें components given है, ठीक है. Now next, एग्जिटिंग MS एक्सेस से बाहर कैसे जाना है, ठीक है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं या क्रॉस बटन क्लिक करते हैं, तो हम उससे क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं. ओके, थैंक यू.